السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے خلاف نامناسب ریمارکس پر آج تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے بی جے پی لیگل سیل کے ہمراہ ریاستی خواتین کمیشن کے سامنے ہوئے حاضر۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے جانب سے گزشتہ سال منعقدہ گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ ہونے پر ایک نوجوان نے کی خودکشی۔ ایک خودکشی نوٹ لکھ کر خود کو ٹھہرایا موت کا ذمہ دار۔ بجلی کی واجبات کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر سرکاری اسکولوں کی بجلی کی سپلائی نہیں کی جائے گی منقطع۔ سری نواس یادو کا بیان۔ تمام سرکاری اسکولوں کو 15 مئی تک اسکولوں کی مرمت کرنے کی دی ہدایت۔ شہر حیدرآباد کے شاستری پورم علاقے میں پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ۔ کسی کے جھلس جانے یا پھر کسی کی جانی نقصان کی نہیں ملی کوئی اطلاع۔ تلنگانہ کے بی جے پی انجنی کمار کا بیان۔ کہا، تلنگانہ ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے معاملے میں ملک میں سہرِ فہرست۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کی قیادت میں ٹی ہبس، ٹی ورکس جیسے کئی اقدامات کیے گئے۔ این آئی اے نے پی ایف آئی کے 4 ملزمین کو چنچل گورا جیل سے این آئی اے دفتر کیا منتقل۔ 4 ملزمین سے این آئی اے کرے گی پوچھ تاچھ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کی کویتا کے خلاف نامناسب ریمارکس پر آج تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے ریاستی خواتین کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ بی جے پی لیگل سیل کے نمائندوں کے ساتھ کمیشن کے دفتر گئے۔ تلنگانہ وومنس کمیشن نے سنجے کو اس خصوص میں نوٹس جاری کی تھی کہ جس نے حال ہی میں کویتا پر ان کے تبصروں پر اپنی طور پر کارروائی کرتے ہوئے یہ نوٹس جاری کی تھی اور 15 مارچ کو انہیں حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ بنڈی سنجے نے خواتین کمیشن کے صدر نشین کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اسی لیے وہ 15 مارچ کو نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ وہ 18 مارچ کو حاضر ہوں گے، جس پر کمیشن نے ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے گزشتہ سال منعقدہ گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ ہونے پر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ سلسلہ ٹاؤن کے بی وائی نگر کے رہنے والے ایک 32 سالہ نوجوان نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پیپر لیک معاملے کے بعد حکومت نے گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 11 جون کو دوبارہ امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد نوجوان کو لگا کہ اس کی قسمت میں نوکری نہیں ہے، جس سے پریشان ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ نوجوان نے گروپ 1 میں امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مین امتحان میں منتخب ہوا تھا اور وہ مین امتحان کی تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ نوجوان نے ایک خودکشی نوٹ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنے خودکشی خط میں لکھا کہ وہ 6 سال سے نوکری کا انتظار کر رہا تھا اور گروپ 1 کے امتحان کی منسوخی سے مایوس تھا۔ مزید نوکری ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ وزیر فائنانس مویشیات سری نواس یادو نے اعلان کیا ہے کہ وہ محکمہ برقی کے عہدیداروں کو واضح ہدایت جاری کریں گے کہ وہ بجلی کی واجبات کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر سرکاری اسکولوں کی بجلی کی سپلائی کو منقطع نہ کریں گے۔ تلاسانی سری نواس یادو نے نارائن گوڑا میں موجود کیشو میموریل اسکول میں شہر کے سرکاری اسکولوں کے ہیڈ اساتذہ کے ساتھ منعقدہ میٹنگ سے خطاب کیا۔ اسٹیج سے سامنے موجود پرنسپلوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا کیونکہ وزیر موصوف نے اعلان کیا ہے کہ محکمہ برقی اور اسکول کی ایجوکیشن کے افسران آپس میں مل کر کام کریں گے اور متعلقہ اسکولوں میں بجلی کی سپلائی بند نہ کرنے کے احکامات جاری کریں گے۔ محکمہ تعلیم کے سیکریٹری وکاتی کرونا اور کمشنر دیو سینا نے میٹنگ میں اس معاملے پر پاور ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ تال میل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ والدین گھروں میں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور جب اساتذہ طلبہ کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح سلوک کریں اور اسکولوں میں آنے سے لے کر گھر واپس جانے تک ان کی خیریت کا خیال رکھیں تو اساتذہ کے لیے طلبہ میں اور زیادہ عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آج کے طلبہ ہندوستان کے مستقبل کے شہری تبھی بنیں گے جب ہم اپنے اسکولوں میں آنے والے طلبہ کو تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خوشگوار ماحول پیدا کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سابقہ حکومتوں میں سے کسی نے بھی سرکاری اسکولوں کی ترقی پر توجہ نہیں دی اور ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں حکومت نے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے مساوی بنانے کا ایک وسیع پروگرام منا بستی منا بڈی شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرنسپلز کی
जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूलों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान के ज़रिए शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्रामों की निगरानी करे। ये मशवरा दिया जाता है कि मुतल्लका स्कूलों को मंजूर शुदा कामों के मेयार और मुतल्लका स्कूलों की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के साथ मशावरत के साथ अमल दरामद तरीक़े पर नज़र रखी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतल्लका कामों के पेश रफ्त में अगर कोई दुश्वारी पेश आती है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर मकामी डिप्टी DEO और मकामी MLA की तवज्जो में लाया जाए ताकि तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो सके। असातिज़ा को हिदायत दी कि वह तातीलात के दौरान कामों की निगरानी में तेज़ी लाएँ क्योंकि अगले माह से 24 तारीख से स्कूलों में छुट्टियां होंगी और मनसूबाबंदी तरीक़े से काम करें ताकि 15 मई तक ये काम मुकम्मल हो सके और बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई रुकावटें ना आए। హైదరాబాద్ సిటీలో ఇచ్చింది అవి కూడా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీసే. మొత్తం జరిగిన రివ్యూలో ఇప్పుడు మన హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏప్రిల్ మంత్ ఎండింగ్ కానివ్వండి మే 15th వరకు ఈ 35% ఫేస్ 1లో ఉన్నాయని 100% కంప్లీట్ కావాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఆల్రెడీ వర్క్స్ ఆన్గోయింగ్. దాంతో పాటు ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్లను కూడా ఈరోజు ఇన్వైట్ చేసినాం అందరూ. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించిన తర్వాత వీళ్ళే తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలకు, ఆ టీచర్స్ కావచ్చు, ఆ ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్. కాబట్టి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా అదే స్కూల్లో వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఏది అక్కడికే పోతున్నారు కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు ఆ ప్రికాషన్స్ వర్క్స్ ప్రాపర్గా జరుగుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయమని చెప్పినాం. దీనికి డిప్యూటీ DEOలు కానివ్వండి, డిప్యూటీ SPRలకు 5 6 పాఠశాలలకు ఇన్ఛార్జులు పెట్టడం. ఇవన్నీ బై మార్చి 15 వరకు 100% కావాలనేదే మరి గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు. మే 15 ఎందుకంటే మళ్ళా జూన్ 12 స్కూల్ ఓపెన్ అయింది. అందులో మళ్ళీ దాంట్లో ఏంటంటే స్క్రీన్ షాట్ బోర్డ్ ఒకటి, దాంతోపాటు పిల్లల ఫర్నిచర్, రెండోది రిటర్నింగ్ వాల్, బాత్రూమ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ. వీటితో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఫర్నిచర్, పిల్లలకే కాదు ఉపాధ్యాయులు. ఇవన్నీ దాంట్లో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలు. రెండోది మీకు తెలుసు సిటీలో కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలకు కొన్ని స్కూల్స్లలో కరెంటు బిల్లు కట్టలేదని కరెంటు కట్ చేస్తారు. అది బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్. ఇప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కడ కూడా స్కూళ్ళల్లో కరెంట్ కట్ చేయదు. అదేనా ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంటు కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఇది అక్కడక్కడ కొంత ఇబ్బంది. కాబట్టి అవన్నీ విద్య అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. హైదరాబాద్లో విద్య కాస్ట్లీ. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం వలన దీన్ని మార్కెటింగ్ చేసుకొని ప్రైవేట్ రంగంలో మరి విచ్చలవిడిగా ఫీజులు అవుతున్నటువంటి కూడా తెలుసు. నాకు పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం ఉంది. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో పంపించే పరిస్థితి ఉండదు. రెండోది మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటే అన్ని ఫిల్అప్ చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి ఒకటి ఏంటంటే అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత వేకెన్సీస్ ఉంటే అది కూడా ఇబ్బంది. కాబట్టి అవన్నీ మొదలుగా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయాలనేది గవర్నమెంట్ లక్ష్యం. అవన్నీ చేస్తాం. हुकूमत तेलंगाना रियासत पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात को अफशा करने वाले मुलजिमीन को माफ़ नहीं करेंगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मुअत्तल 2 मुलाजमीन और पेपर लीक मामले की साजिश में मुलव्विस किसी भी अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी, बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात के तारक रामाराव ने हफ्ते को यहाँ एक बात कही। KTR ने दावा किया कि गिरफ्तार एक मुलजिम BJP का सरगर्दा रुकन बताया गया है, इसलिए वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG से एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हुकूमत को बदनाम करने और नौजवान को मुश्ताल करने की अगर साजिश है तो इसकी तहक़ीक़ात कराएं।
मुख्तलिफ सरकारी महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इम्तहानात के सवालिया पर्चे के अफशा के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तफसीली जायज़ा लेने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर अफशा मामले ने पब्लिक सर्विस कमीशन को हिला कर रख दिया है। कमीशन ने गुज़िश्ता माह के दौरान ग्रुप बशमौल देगर 4 मुसाबकती मुनक्किदा इम्तहानात को मनसूख करते हुए इन इम्तहानात को दोबारा मुनक्किद करने का फैसला किया है। सवालिया पर्चा अफशा का मामला भी सियासी तौर पर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने इस मामले की बरसर खिदमत जज या CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अपोजिशन न सिर्फ KTR बल्कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहा है। उनके इस्तीफ़ा के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए KTR ने सवाल किया कि इन मामले में उनका क्या लेना देना है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को याद दिलाई कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक आईनी इदारा है। టైం ఉంది కదా, ఈ రోజుతోనే మొత్తం అయిపోలేదు కదా. వినండి వినండి వినండి, నేనేం బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేను బ్రదర్. ఇదేం టీవీ డిబేట్ కాదు, బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేదు. మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు, నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను, వినండి. శాంతం. తొందర పడతావు ఎందుకయా? ఎందుకు తొందర ఎందుకయా బాబు? తొందర పడకయా బాబు అంటే తొందర పడక, టెన్షన్ పడకయా, టెన్షన్ పడక. అవసరమా ఇది? నేను ప్రభుత్వంలో బాధ్యత గల మంత్రిని, మీకేం బాధ్యత ఉంది? నీకేం బాధ్యత ఉంది బ్రదర్? 4 కోట్ల ప్రజలు కలిసి నేను గెలిపించినారు. బాగానా 4 కోట్ల ప్రజలు నేను గెలిపించినారే? ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం మాది, మాకు తెలియదు ఏం చేయాలో. మీరు నీ దగ్గర నేర్చుకోవాలా? నేను ఏ వాయిస్ ఎక్కడ వాయిస్? झूठ बोलने से उम्र कम होती है, सच बोलने से उम्र में इजाफा और रिस्क में इजाफा होता है और चेहरे पे नूर भी बरकरार रहता है। दरगाह यूसुफीन में जलसे इस्तकबाल रमज़ान व विलादत गौसे आज़म से अब्दुल रहीम रहमानी का खिताब, सच बोलने से दुआएं कबूल होती है, उम्र में इजाफा होने का ज़रिया है। इस्लाम ने झूठ को सख्त मना करते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं। झूठ एक नाहवस बीमारी है, झूठ शैतान को खुश करता है, रहमान को नाराज़ करता है और रिस्क को दूर करता है। जैसे इस्तकबाल रमज़ान विलादत गौसे आज़म दरगाह यूसुफीन रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाही मुआशरा मुखातिब करते हुए कहा कि औलिया सालिहीन में हज़रत सैयदना पीरान पीर गौसे आज़म एक मीनान नूर की तरह नुमाया मकाम रखते हैं, जिनकी वलायत आयत मशरिक़ व मगरिब शुमाल जुनूब में अल्लाह ने फैला दी है। आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। आपसे किसी ने पूछा कि आपको वलायत में इतना बुलंद वाला मकाम कैसे हासिल हुआ, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सच्चाई पर कायम रहते हुए मैंने अपने माँ से किया हुआ वादा पूरा किया और मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मुझे क़ुर्ब इलाही की दौलत से सरफराज फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं। दौर जहालत में भी लोग झूठ नहीं बोला करते थे। अफसोस की बात यह है कि लोग रोज़े की हालत में भी झूठ बोलते हैं, जबकि झूठ गुनाह कबीरा है। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह आग और तेल एक जगह नहीं रह सकता, इसी तरह सच और झूठ एक साथ नहीं रह सकते। तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने कहा है कि तेलंगाना टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मामले में मुल्क में पहले मकाम पर है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सैबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद में ख़वातीन का कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद किया गया। DGP अंजनी कुमार, सैबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्क्लेव में साइबर सिक्योरिटी के शोबे में बासलाहियत ख़वातीन के अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी की महाज पर नंबर 1 मकाम रखता है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और आराम के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मसले पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव की क़यादत में T-हब्स, T-वर्क्स जैसे कई इक़दामात किए गए। मुल्क में अनोखे प्लेटफॉर्म्स का आगाज़ तेलंगाना में किया गया है। सैबराबाद पुलिस इसकी क़यादत कर रही है। इस सिलसिले में बेहतरीन इक़दामात सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के आवाम के लिए इत्मीनान का जज्बा पैदा करने पर उन्होंने कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा और सैबराबाद पुलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। Medical technology, if I say Dr. Garu is here, I think real miracles is happening in the field of medical science because of technology. But it also brings along with it the other side of it. That is the criminality associated with technology. So every small thing of technology can be weaponized, can be used as a weapon. So what is the way out?
Sustainable safety is the subject here. How do we sustain? Because we have to go ahead with technology. From the time of bullock cart to the time of Mercedes-Benz and BMW, the speed has gone up 100 times. People drive at mind-boggling speed now, but still accidents are very less. Why? Because basic protocol, one should drive on the left side of the road. If everybody is driving on the left side, it's safe. If one person goes on the right side, it will cause accident. So protocol and norms are most important. And that is why such kind of a interaction, seminar is required to create that atmosphere of protocol. When you are participating in any platform where there is a technology involved, where there is a networking involved, when there is a connectivity to internet is involved, then safety protocol has to be followed. With safety protocol, technology is a wonderful servant. Otherwise, you are vulnerable. Therefore, I really thank Stephen Ravindra, Krishna Garu for this wonderful initiative and the entire team of Cyberabad Police, which has brought such a good name for Telangana and the whole brand of policing, which has gone to the next level. I compliment each one of you, and I once again thank you for giving me this wonderful opportunity to share time with each one of you. Thank you so much. शहर के नामपल्ली में वाक़ फैशन वेयर का मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब में मल्लीपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान और दीगर दोस्त अहबाब मौजूद थे, जबकि तमाम ने फैशन वेयर के मालिक शेख जानदार और उनके बरादरान को मुबारकबाद दी, जबकि उन्हें हज़रात ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे मीन्स वेयर फैशन फीवर की इनॉग्रेशन किया गया जाफ़र हुसैन मेराज साहब के हाथों, और अपने ये हमारा दूसरा ब्रांच है हमारा मल्लीपल्ली पे। इंशाल्लाह रमज़ान का बहुत स्पेशलिस्ट है। अपने शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, स्पेशल आइटम्स मिलेंगे अपने पास। ये अपन रमज़ान के लिए एक स्पेशलिस्ट करे, इसके लिए अपना ऑलरेडी दूसरा ब्रांच भी है। 2 ब्रांच हो गए, फैशन फीवर नाम से ये 2 ब्रांच हो गए। इंशाल्लाह तीसरा भी करने का इरादा है। एक बार हमारे पास तशरीफ़ लाकर देखिए आप लोग, इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस मिलेंगी आपको और क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी देंगे आपको इंशाल्लाह। प्राइस भी बहुत रीजनेबल रहेगा। कुबीर मंडल में निर्मल ज़िला BRS सदर जी वट्टल रेड्डी रुकन असम्बली मधोल ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, जिसमें कुबीर मंडल मुस्तक़र पर तकरीबन 83 करोड़ रुपए से CC रोड और नालियों के कामों का आगाज़ किया गया। कुबीर मंडल के मौज़े हमपूली में 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। अलावा अज़े कुबीर मंडल के मौज़े सुनारी में मुनूर कापूर संगम भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और मौज़े सुनारी की सरकारी स्कूल पहुंचकर दोपहर के खाने की स्कीम और CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर ज़िली BRS जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर, मुनूर कापूर तालुका सदर रमेश, नायब MP मोइनुद्दीन, शंकर चौहान, संतोष कुबीर, सरपंच मीरा विजय कुमार, नायब सरपंच इकरामुद्दीन और गंगाधर धर्माकरण, साईनाथ कल्याण और वार्ड मेंबर मौजूद थे। कागज़ नगर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर सदर मजलिस कागज़ नगर टाउन अब्दुल मुबीन के हमरा जनरल सेक्रेटरी जावेद मन्नास और अरकान मजलिस ने DSP कागज़ नगर करुणाकर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें 23 मार्च से शुरू हो रहे माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र रमज़ान के दौरान दुकानें और होटल्स रात 12 बजे तक खुले रखने की दरख्वास्त पेश की गई। रमज़ानुल मुबारक के महीने के दौरान ख़ास तौर पर अफ्तार के औक़ात में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक पुलिस के जानिब से गाड़ियों को चेकिंग न किए जाने का भी मुतालबा किया गया। एक दरख्वास्त कापी म्यूनसिपल कमिश्नर S अंजिया को भी पेश की गई ताकि तमाम म्यूनसिपल वार्डों के लिए पीने की पानी की आसान फराहमी और शहर कागज़ नगर की तमाम मसाजिद के करीब सफाई बरकरार रखी जा सके और शहर के तमाम मसाजिद के करीब रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम करने का भी मुतालबा किया गया और बिजली की फराहमी के लिए DE सर AE को भी एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिस पर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने हर मुमकिन ताउन करने का तक़य्युन दिया। इस मौके पर तमाम अरकान कमेटी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग के गोदाम में रखी 2 DCM वैन्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। इस वाक़े के नतीजे में मकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीब धुआं भी काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा था। आज सुबह पेश आई इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। आग के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इत्तला दी गई, वो आकर आग को काबू में किया। इसी तरह इत्तला मिलते ही मजलिस के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बैग ने भी मौके वारदात का जायज़ा लिया। आज सुबह के टाइम पर जो कि मिरालम में MJ पैलेस के बाजू एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा गोदाम था, उसमें आग लगी। जैसा आग लगती कि इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने फायर के आला अहदेदारों से बात की है और पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और GHMC के जो DRF टीम जो रहती है उनसे बात करके सदर मोहतरम फौरी यहाँ पर स्पॉट पर भिजाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया। अभी पूरी आग काबू में है, क्योंकि जो प्लास्टिक को जो आग पकड़ी है उसको बुझाने के लिए पूरे फायर के गाड़ियाँ यहाँ पर है, तकरीबन 6 गाड़ियाँ हैं और वो काम चल रहा है। और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब और हमारे एरिया MLA जनाब नवाब मोहम्मद मुज़म खान साहब भी यहाँ के कंसर्ट ऑफिसरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गोदाम को आग लगने की वजह से कई गरीब लोगों की भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उस ताल्लुक़ से भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। और हमारे यहाँ के मुकामी सदर मुतमद्दीन भी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोग जैसा आग लगते ही यहाँ पर आकर आग को बुझाने के लिए मुमकिन कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह आग काबू में आ चुकी है। क्योंकि जब कभी भी ऐसे हादसे होते हैं तो पहले पहुंचने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आग को काबू में लाया गया। बाजुक भी 1-2 गोदामा थे, वो गोदामों को भी नुकसान होने का अंदाज़ा था, मगर उसको भी सेफ किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारपोरेटर साहब जनाब अब्दुल खादर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं तमाम यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट हो या फायर डिपार्टमेंट हो, पूरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पर आकर इनकी मदद करें उनका भी शुक्रिया अदा करना। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर कालापत्थर एरिया में ताड़वन एक्सपोर्ट के बाजू में MJ फंक्शन हॉल के बाजू में जो है सो एक अयूब इंडस्ट्रीज है, इसका ओनर अयूब है। गोलकपुर में रहने वाले चला रहे हैं। प्लास्टिक की जो जगह से हर जगह से जो वेस्टेज है वो कलेक्ट कर लेके लाके यहाँ पर डंप कर रहे हैं। उस सिलसिले में यहाँ पर गोडाउन में जो है सो फायर एक्सीडेंट हुआ। उस सिलसिले में इंफॉर्मेशन आते साथ ही हमारे कालापत्थर पुलिस और नाइट राउंड ऑफिसर सभी आ गए और DRF ये लोगों को फायर डिपार्टमेंट को इत्तला देने से लोगों सब आ गए पानी छीन के और सभी फायर तो रुक गया। अब फिलहाल कुछ नहीं है, किसी आदमी को भी कुछ जख्मी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 गाड़ियाँ जल गए बोल के मालूम हो रहा। फिर भी हम लोग इसके बाद में जांच करेंगे हम इसके इस सिलसिले के बारे में। और बाजू में इंटरमीडिएट कॉलेज है, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज है, उसमें इंटरमीडिएट सेंटर है। वो लोगों को भी जो पहले सुबह का टाइम जो है सो स्मोक था, उस वजह से बच्चे जो है सो एग्ज़ाम लिखना मुश्किल था, लेकिन अब पूरा वो क्लियर करा के वो लोग अब एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं, सब भी क्लियर है। थैंक यू। सिफा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह जारिया साल भी सिफा बैतुल माल टेररिंग सेंटर मस्जिद हाजी साहब पर मौलाना शाहिद गुफरान कासिम मोहतमी मदरसा दारुल उलूम जामिया अदबिया भैंसा और सिफा खुद्दाम के हाथों 400 मुस्तहक़ ख़ानदानों में 4 लाख रुपए का मुफ्त राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मौलाना शाहिद गुफरान कासमी ने खिताब करते हुए सिफा की रफ़ाई व फलाही खदमात की सताइश की और अहले इस्तात लोगों से ताउन की गुजारिश की। हाफिज़ मुनीरुद्दीन सदर सफ़ा ने तमाम मुआविन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सिफा के खुद्दाम मोइनुद्दीन, शेख इरफान, सैयद हफीज़ुद्दीन, अब्दुल रज़्ज़ाक़, शेख दाऊद, समीर, सुफियान, अबूसर व दीगर मौजूद थे।
स्कूल्स में साल के आखिर में PP2 की तलबा के लिए ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्किद करते हुए उन्हें पहली जमात में मुंतकिल किया जाता है। इस सिलसिले के तहत इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल मलकपेट ब्रांच के जानिब से ग्रेजुएशन डे और इनामात तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रिंसिपल स्कूल सैयद अफशां ने तकरीब की निगरानी की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा व तालिबात में इनामात और सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर तलबा व तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बेहतरीन तालीमी मुजाहरे करने वाले असातिज़ा को भी इस मौके पर सताइशी असनादात पेश किए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We at Integral Foundation School Malakpet have organized graduation day today to facilitate our students taking part in different activities throughout the year. Actually, graduation day is a program which we organize usually to encourage our children who are moving up from the pre-primary level to the primary level. Along with our pre-primary children, we have facilitated our primary and high school children who have taken part in Science Square, Mathmania, Cultural Hub, and many more events organized during the year. Mashallah, children have taken very good, they have taken part very beautifully, they have performed, they have come up with many creative activities, I can say. Even they have performed many scientific experiments where they have proved themselves that they are the best, mashallah. And we hope for their better future. In the coming academics, we are planning for many more events, many more academic excellence activities, so that our students studying in our school, they just shine in the society and get a good name for their family and our school. Alhamdulillah. तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी लकड़ी का पुल हैदराबाद में BRS कायदीन से मुलाकात की। इस वक्त में राजेंद्र नगर BRS नायब सदर सैयद मुसम्मिल अहमद, देवदात SC सेल सदर, शास्त्रीपुरम BRS इंचार्ज शौकत, BRS कायदीन इसहाक सलीम और हैदराबाद BRS कायदीन अनीकुद्दीन फारूकी, मोहतरमा अस्मा, खैराबाद जावेद व दीगर मौजूद थे। जबकि तमाम ने नवमुंतखब चेयरमैन तारिक अंसारी को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद अज़ा इस सिलसिले में BRS कायद सैयद मुजम्मिल और चेयरमैन तारिक अंसारी ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बातचीत की। जय तेलंगाना। आज यहाँ पर मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए प्रकाश गौर साहब की निगरानी में, उनके सुपरविजन में जो टीम काम कर रही है राजेंद्र नगर में, काबिल ज़िक्र मुजम्मिल साहब हैं और उनकी हरकती तमाम जो नौजवान जो टीम है SC ST सेल की है, देवदास है और जो है शौकत साहब है, सलीम साहब है, यकीन साहब है और मोहतरमा जो है जो महिला की सदर है, महिला BRS की जो सदर है अस्मा बेगम है और जावेद BRS, तमाम जितने भी लोग हैं, मैं ईसा भाई, मैं उनका जो है दिली जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ख़ास तौर पे आपके इस प्लेटफॉर्म के, आपके इस चैनल के ज़रिए, Z चैनल के ज़रिए मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला द फादर ऑफ तेलंगाना जनाब KCR साहब का जो है आप लोगों की जानिब से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो है इतने अहम अहदे पे मुझे फ़ैज़ किया गया। यकीनन डेफिनेटली जो उम्मीदें तवक़्क़ात लगा के हमारे CM साहब ने लगाए हैं, मैं यकीनन उस तवक़्क़ात पे उतरूँगा और काम करूँगा और तमाम आप लोगों की ताउन से अक़लियतियों के लिए जो है जितनी भी नाइंसाफ़ी होती है और हुकूमत के ऐवानों तक जो है उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए जब पूरे दरवाजे बंद हो जाते तो यह कमीशन का दरवाज़ा खुल जाता है। तो जितने भी अक़लियतों की जो है मांग रहेंगी, उनकी जो है ज़रूरत रहेंगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जो आवाज़ रहेंगी, मैं ऐवानों तक पहुंचा के हुकूमत तेलंगाना की से ताउन लेते हुए मैं जो है उनकी मदद करेंगे। और डेफिनेट फिर एक बार मैं आप तमाम का जो है आप लोग जिस तरीके से जो पार्टी की खिदमत कर रहे हैं वो काबिल सताइश है आप लोगों को, और आगे भी आप पार्टी के लिए ऐसी काम करते रहिए ताकि जो है KCR साहब के पास पार्टी में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा कदर है। एक मिसाल जो है ज़िंदा मिसाल ये आपके सामने मैं खड़े हुआ हूँ। तो जो है यकीनन मैं आप लोगों से फिर एक बार करता हूँ कि आप लोगों की तमाम की खिदमत को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पर आके आप लोग मेरी इज़्ज़त और ये अफ़ज़ाई और हिम्मत अफ़ज़ाई की है, उसके लिए मैं तहे दिल से फिर एक बार जो है मशकूर हूँ। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
PFI केस में 4 मुलजिमीन को जो जेल में मुकीम हैं हफ्ते के रोज़ अपनी तहवील में ले लिया है। NI के हुक्काम ने जाहिद, समीउद्दीन, मुआज़, हुसैन और कलीम को चंचल गोरा सेंट्रल जेल से तहवील में ले लिया है। इन मुलजिमीन को NIA दफ्तर मादापुर ले जाया गया जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। इन मुलजिमीन के साथ दीगर के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल केस दर्ज किया गया था। मुस्लिम नौजवान को बुनियाद परस्त बनाने और उन्हें हथियार चलाने की तरबियत फराहम करने के इल्ज़ाम में NIA ने गुज़िश्ता साल तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मकामात से PFI के 20 कारकुनों को गिरफ़्तार किया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 11 मुलजिमीन के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि NIA ने 16 मार्च को मज़ीद 5 मुलजिमीन के ख़िलाफ़ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। इन 5 कारकुनों पर मुस्लिम नौजवान को बुनियाद परस्त बनाने, उन्हें उकसाने, मुनज़्ज़म अंदाज में ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद करते हुए उन्हें हथियार चलाने की तरबियत फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। रिटायर IPS ऑफिसर मुशीर हुकूमत तेलंगाना अक़लियती उमूर व सदर TMR-EIS ने आज इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात दे रहे तलबा के मरकज़ का दौरा किया। AK ख़ान ने टोली चौक में वाक़ एक इम्तहान गाह का दौरा किया। जब AK ख़ान इम्तहानी मरकज़ पहुँचे तो बच्चे इम्तहान लिख रहे थे। इसके बाद AK ख़ान इम्तहान ख़त्म होने तक इम्तहान गाह पर ही रुके। इम्तहान ख़त्म होने के बाद बच्चों से मुलाकात की और इम्तहान के बारे में तफसील जानी। तलबा ने भी मुस्बत राय दी। इस मौके पर AK ख़ान ने मीडिया से तफसीली बात की। 10वीं जमात और इंटरमीडिएट ये दोनों एक तलबा के ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं, इसलिए कि जो मार्क्स यहाँ हासिल होते हैं इसके बुनियाद पर आइंदा चलकर कौन से कोर्सेस लेना है, इनको कौन से कोर्सेस में दाखिला मिलेगा, ये बात तय होती है। तो इसलिए टिमरिस में हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं 10th के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए। इंटर के एग्ज़ाम्स तो शुरू हो चुके हैं, अब तक 2 पेपर्स मुकम्मल हुए हैं इनके। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इन बच्चों से, यहाँ पर दोनों पेपर अच्छे गए हैं इनके। हर एक को कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि अच्छे मार्क्स के साथ ये 2 एग्ज़ाम्स कंप्लीट करेंगे। और 2 दिन के अंदर फिर ग्रुप्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप्स में जो मार्क्स मिलते हैं उससे इनका हौसला अफजाई भी होता है। अच्छे मार्क्स अगर मिल गए तो उसके बुनियाद पर इनकी तैयारी जो नीट के लिए, MSET के लिए होती है वो भी अच्छी तरह होती है। टिमरिस की तरफ से तो हम लोग कम से कम 4, 5, 6 महीने से इनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस, सुपरवाइज्ड क्लासेस ये सब चला रहे हैं। अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, लेक्चरर्स हैं, स्टडी मटेरियल भी फराहम किया गया है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल है इनके पास। ये जो अच्छी टीचिंग है साथ ही साथ अच्छा मटेरियल है और बच्चे भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि नताइज बहुत बेहतर होंगे। गुज़िश्ता साल इससे पहले साल भी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास, तो इससे भी बेहतर रिज़ल्ट्स आएंगे। हर साल इसमें अफजाई होती जाएगी और अच्छे रिज़ल्ट्स आते जाएंगे। तो ये एक बात है। जो वोकेशनल कोर्सेज़ के तलबा जो हैं उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और इनके 3 पेपर्स बहुत ही अहम हैं। ये पेपर्स में मार्क्स आने के बाद जो नॉलेज बेस बनता है उसके बुनियाद पर हैदराबाद में जो इंडिया का मेडिकल सेंटर कहलाता है, यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है इधर। ऐसे टेक्निकल कोर्सेस में भी माहिर वर्कशॉप्स में हो और बड़े बड़े शोरूम्स में यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज जो करके बाहर निकल रहे हैं, एयर कंडीशनिंग हो, मैकेनिकल हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इनके लिए भी अच्छे जॉब्स के रास्ते खुले हुए हैं। इनके वहाँ भी ये अच्छे पोजीशंस हासिल कर पाएंगे। टिमरिस के तरफ से, हम सब के तरफ से इनको हम मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा एग्ज़ाम जो बाकी हैं इसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं और इसी बात की दुआ भी करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकन कानून साज कौंसिल की कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर आज तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय बीजेपी लीगल सेल के हमरा रियासती खवातीन कमीशन के सामने हुए हाजिर।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے جانب سے گزشتہ سال منعقدہ گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ ہونے پر ایک نوجوان نے کی خودکشی. ایک خودکشی نوٹ لکھ کر خود کو ٹھہرایا موت کا ذمہ دار. بجلی کی واجبات کے عدم ادائیگی کی بنیاد پر سرکاری اسکولوں کی بجلی کی سپلائی نہیں کی جائے گی منقطع. سری نواس یادو کا بیان. تمام سرکاری اسکولوں کو 15 مئی تک اسکولوں کی مرمت کرنے کی دی ہدایت. شہر حیدرآباد کے شاستری پورم علاقے میں پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ. کسی کے جھلس جانے یا پھر کسی کی جانی نقصان کی نہیں ملی کوئی اطلاع. تلنگانہ کے بی جے پی انجنی کمار کا بیان. کہا تلنگانہ ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے معاملے میں ملک میں سہر فہرست. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کی قیادت میں ٹی ہبس ٹی ورکس جیسے کئی اقدامات کیے گئے. این آئی اے نے پی ایف آئی کے 4 ملزمین کو چنچل گورا جیل سے این آئی اے دفتر کیا منتقل. 4 ملزمین سے این آئی اے کرے گی پوچھ تاچھ. خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا. مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی کل ملاقات. اللہ حافظ. زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا, پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین. HKGN فرنیچرز, کمپلیٹ بیڈ سیٹ, صوفہ سیٹ, ڈائننگ ٹیبل. اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں, اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری. آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی. ایڈریس فرید کمپلیکس, اویسی ہل, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن, ناظرہ قرآن, قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت, مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت. طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم, خصوصی کمپیوٹر کلاسز, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں, اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول, اپوزٹ لین, نیو SR پیٹرول پمپ, وٹاپلی, حیدرآباد.